Subscribe to my YouTube channel and click the bell icon for the latest film interviews, features, and recommendations on the movies that matter. Gentlemen, so good to see you. You made a film that I love and that everyone loves. You made Tumbad, which is such a beautiful film. I mean, beautiful is not the word one usually uses to describe a horror film, but this is a film that was, of course, deeply rooted in a mythology that you all created. You all merged mythology with history, with fiction, and you all created a film that is extremely evocative. I mean, the images are absolutely stunning images. The fear is genuine. This was not your typical horror film that Bollywood does. It's not about jump scares as it is about creating a mood, creating an atmosphere, and transporting the audience to that world. So I'm so happy that we have with us today the team of Tumbad. Of course, the producer and the leading man Soham Shah. We have co-director and co-writer Adesh Prasad. We have the film's director and one of the co-writers, of course, Rahi Anil Barve, and one of the other leading men of the film, in the film, very pint-sized, now all grown up, Mohammad Samad. Gentlemen, welcome. Thank you for being here for this little reunion. Thank you. I want to start by asking that, the story of how this film was made is as fascinating as the story that you'll put on screen. It took, of course, everyone knows it took 6 to 7 years to complete. It's an expensive film that you all put together. Of course, it paid off. All the gambles paid off. Film बहुत लोगों को पसंद आई. Film चली भी theaters में. It's a big hit on Amazon Prime Video where it rests right now. It's got a sort of a cult following. In less than 2 years, it already has a big legion of fans. But it was a hard film to make, given that it took so long, given what it cost. If you could redo it all over again, अगर आप दोबारा इस सफर पर निकल सकते थे तो आप what would you do differently this time? कम झगड़ेंगे बहुत कम झगड़ेंगे ना या डेफिनेटली कम झगड़ेंगे क्योंकि हमने जब फिल्म बनाई थी तो हम लोग इतने मैच्योर नहीं थे मतलब हमारे टीम में कोई 35 साल का तो था ही नहीं मतलब सब बच्चे थे कोई सीजन नहीं था फिल्म आगे आगे थी हम लोग पीछे पीछे थे फिल्म ने जो मांगा हमने दे दिया तो डेफिनेटली एक एक्सपीरियंस के साथ आप बहुत कुछ चीजें सीखते हो तो टाइम कम वेस्ट होगा रिसोर्सेज कम वेस्ट होंगे फिर भी मुझे लगता है कि तुम्बाड़ का जो एक्सपीरियंस है ना वो दोबारा रिक्रिएट हो ही नहीं सकता मतलब शायद वो फिल्म को उतना चाहिए ही था कि इसमें बहुत सारे क्रिएटिव लोग इन्वॉल्व थे और मतलब बहुत लोग टाइम पर आए और टाइम पर चले गए मतलब मुझे लगता है कि अगर कुछ लोग अभी भी इन्वॉल्व होते तो अभी भी फिल्म खत्म नहीं हुई होती अभी भी मतलब वो जर्नी चल रही होती तो बहुत कुछ हुआ इस फिल्म के साथ बहुत क्रिएटिव लोगों की इसमें एनर्जी रही है मुझे लगता है कि तुम्बाड़ रिक्रिएट करना तो मुश्किल है पर डेफिनेटली तुम्बाड़ जैसा कुछ और बनाने की चाह है वो हम कम टाइम में कम रिसोर्सेज में बना पाएंगे See, the thing is with all the knowledge that we've already earned while making Tumbad, now to do something like that would probably be production wise easier right. But there will also be a burden of like expectations which will have nothing to do with the expectations of others. It will be your own expectation that Yep. because you tend to become greedy that you want to do something better, something bigger, or this time probably the challenge would be to have that perspective to just focus on the journey and not think too much about whether it's going to work or not, which was basically the intention even the first time, but it's just that because there was no reference, there was no we were not aware how it's going to be received, so we were just focused on just showing up every day and just doing our job. Sir, reference is like actually not just with Tumbad, with all the films that is a major problem which we face. Everybody asks us like thanks to Soham हर कोई पूछता है कि रेफरेंस क्या है 97 में लिखा 2008 से लेके 2012 तक हर कोई यही पूछ रहा है रेफरेंस बताओ ऐसी कोई फिल्म बनी नहीं है भाई मतलब 3 बार बन के फ्लोर से वापस आ गए बैंड बजी थी सो आई लव यू राइट इज द फर्स्ट गाय ना उसने ये नहीं बोला कि बॉस कुछ तो दिखाओ ऐसे जो पहले बनाए जो एंड मतलब थैंक यू राजू थैंक यू Samad, you were a little boy when you started this film. And I guess you grew up on screen in a sense. Yes. I'm grew up in 2015. सर समद की ना सबसे बेस्ट स्टोरी है समद जब आया ना सर सबसे पहली बार जब आया ना हम लोग फ्लोर पे जा रहे थे कुछ
20-25 दिन बचे थे और जो लड़का हमने कास्ट किया था पांडुरंग के लिए वो बैकआउट कर गया, उसके पापा बैकआउट कर गए। तो सोहम, मैं, हम लोग सब पागल हो गए कि अभी क्या करें। तो वन ऑफ माय वेरी क्लोज फ्रेंड, कास्टिंग डायरेक्टर, ही सजेस्टेड कि ऐसा ऐसा बंदा है लेकिन वो उड़की में। तो हमने कहा यार अभी वक्त ही नहीं है ऑडिशन करने का, कुछ करने का, तो हमने बस ये बोला कि गंजा करना है, एंड वी बिलीव दैट गाय इज अ ब्रिलियंट कास्टिंग डायरेक्टर। तो समद आ गए भाई साहब। तो समद ने बोला कि हाँ मैं गंजा हो जाऊंगा सर। इतना सा था सर, इतना क्यूट लड़का, बाप रे बाप, इतना गोरा चिट्टा। अभी 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 मत देखो उससे, अभी मत देखो सब, कैसे लॉकडाउन में इतना भी तो नहीं ना। तो आया और बोला हाँ गोटा करने को तैयार हूँ। तो 4 दिन बजे शूट के लिए, तो मैंने उसको बिठाया बाहर ऑफिस के बाहर। तो बाबर था, याद है? तो बाबर था और उसने कहा मैं गोटा करने को तैयार। उसका गोटा कर रहा है ये आदमी, बस बच्चा मस्त बैठा है। मैं भी खुश हो गया, चलो ठीक है, हाफ द बॉयज। और एकदम से ना गोटे में क्या होता है ना, घेरा होता है ना पीछे बाल का, तो हमने वो रखा उसका। तो ये क्या है? मैंने कहा बाल का जो होता है ना पीछे का, ये जो कल्चर जो है ना, एंशिएंट कल्चर है, तो वहां छोटा बाल रहता है पीछे। मैंने कहा सर मैं ऐसे 4 महीने रहूंगा, पूरा गोटा कर दो। तो पहली बार मुझे पता चला कुछ तो गड़बड़ है, 12 साल का बच्चा ऐसे बात नहीं करता, बहुत तीखा बच्चा है। एंड देन ही स्टार्टेड क्राइंग इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। मुझे फिल्म नहीं करनी, याद है सब? मेरी बैंड बज गई, मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने कहा क्या कर रहा है? नहीं सर, लड़कियां देखेगी नहीं मेरी तरफ से, 12 साल लड़कियां मेरी तरफ देखेगी नहीं सर, आप अभी के भी वो गोटा कर दो, पापा से बात करनी है, मैं वापस जाऊंगा। मतलब अरे बाप रे बाप रे बाप, कैसे समझा? बता, समझ, तू बता वो स्टोरी। सर एक्चुअली ये जो बाल रुके हुए थे तो इसकी प्रॉब्लम थी, और एक धोती पहनने की बहुत प्रॉब्लम थी। तो धोती पहनते हुए मेरे को इतना वो लगता था कि साइड से वो निकलता था धोती का, और शर्म आती थी। और एक स्कूल का वो था कि एग्जाम देने में को जाना था, तो स्कूल में टीचर बच्चे सब कैप निकाल के मेरे देखते थे और कहते ये क्या सिंगापुर का फैशन उठा के ले आया तू। पता नहीं यहाँ पे क्या क्या होता था मेरे साथ स्कूल में। तो अभी तो सर ये समझ बहुत चेंज हो गया, मतलब ऐसे बात कर रहा है, इतना सिंसियर, इतना भोला वाला बच्चा लग रहा है। ये सबसे नॉटी लड़का होता था, मतलब क्यों छोटे, मतलब ये उसका डायलॉग होता था, मतलब किसी की भी मूंछों के हाथ लगा दे, मतलब यस सर, मेरी राही, मतलब सब पर चढ़ा हुआ रहता था ये लड़का, इतना नॉटी हुआ करता था। और हम इसे समझाते थे यार तेरे अंदर इतना टैलेंट है, तू थोड़ा ये शरारतें कम किया करता। और ये मतलब एकदम मस्ती खोर हुआ करता था, और हमारी आंखों के सामने मतलब ये इतना सा हुआ करता था। अभी यहाँ से पूरा आदमी बन गया। लास्ट टाइम मैं जब इसे मिला तो मेरे साथ फोटो क्लिक कर रहा था, इतना सिंसियर, ऐसे हाथ इसके, मैं देख के हैरान रह गया, ये वही समझ है, मतलब ये अफलातून हुआ करता था सेट पर। बट मुझे ये पूछना है कि क्या was almost everybody casting changed? क्योंकि I know that the story changed और उसके बारे में बात करेंगे, how the script evolved, but it's also true कि सोहम के पहले नवाज कर रहे थे ये फिल्म, अब पता right in the beginning, अब आप बोल रहे हो समद के पहले कोई और था, means a lot of things changed during this 6-7 year journey, हाँ? 20 साल एक्चुअली सर, 97 में लिखा था तुम्बाड़। राइट। तो 97 में जब लिखा था तब वो फिल्म वही खत्म हो जाती थी जब हस्तर आ जाते हैं सारे, करेक्ट, तो तभी वो खत्म हो जाती थी, उसके बाद कुछ था नहीं। तो 97 में लिखा, 2005 में मैंने मांझा बनाई थी जी। तो वो सब हो गया, उसका डैनी बॉल को पसंद आई, वो अवार्ड्स वगैरह मिले, तो हमने कहा बड़ी फिल्म बनाते हैं। तो उस वक्त हम लोग बहुत छोटे स्केल पे हम लोगों ने शुरू किया सब कुछ। तो सासवड़ का वाड़ा, वाड़ा एम्बियंस स्टोरी बोर्ड तभी शुरू किया। नवाज आया, हम लोगों ने 4 महीने रिहर्सल्स की, हमने टेस्ट शूट्स किए, फिर हम लोग जा रहे थे और हम लोग सब गरीब थे उस वक्त। हम लोग गरीब मतलब सर वहाँ वो हम लोग कैफे में भी नहीं बैठे थे, हम लोग अपना जो 4 रुपए का जो चाय होता है ना वो पीते हम लोग ऐसे ऐसे करके। पंकज मैं तो राही अभी भी गरीब हूँ, राही मैं अभी भी गरीब हूँ तुम्बाड़ की वजह से। मुंह खोल दूंगा। You are the one, like literally, like fuck, it was hell of a journey. Then first Shreyas Maskar was there, the first producer. Then Anurag was there. Second Guneet was there. Then अगर भाई साहब ये नहीं होते सोहम, तो trust me sir, मैं अभी भी पता नहीं अभी कौन सी कोई स्टूडियो बचता नहीं अभी कन्विंस करने के लिए, हाथ पैर जोड़ने के लिए। Is that true कि आप लोग ये स्क्रिप्ट मतलब हर स्टूडियो के पास लेके गए, सबको अच्छी लगी, पर सबने कहा ऐसी तो फिल्म सर पहले बनी नहीं है? या मतलब मुझे अनुराग ने भी बताते होगा क्या होता था तुम्बाड़ के साथ कि आपको पता है स्टूडियो के कैसे रहते हैं आपके। आप पहले जाते हो, आप पिच करते हो, तो क्रिएटिव टीम होती है उनकी पूरी, तो क्रिएटिव टीम के साथ तुम्बाड़ ऑन द स्पॉट हमेशा ग्रीन लाइट। अभी मैं किसी स्टूडियो का नाम नहीं लूंगा, लेकिन सारे ऑलमोस्ट 80% स्टूडियोज क्रिएटिव टीम से हमेशा ग्रीन लाइट।
लेकिन मैंने कम से कम अब तक 35-40 मीटिंग्स की है विद द बिग वंस फ्रॉम 2005 टिल 2011 जब तक सोहम नहीं आया था। तो क्रिएटिव टीम्स यूज्ड टू ग्रीन लाइट, फिर हमारी 4-5 मीटिंग्स होती थी, आइडियाज, डिस्कशन, सब कुछ, और उसके बाद इसके पास जाता था, प्रोडक्शन के पास जाता था, और वहां गड़बड़ शुरू हो जाती थी। और सबसे पहले मुझे पूछते थे कि सर दिस इज नॉट हॉरर एग्जैक्टली, इसमें चिल्स कम है, इसके स्क्रीन्स कम है। मैं दाढ़ी खुजरा मैं बोलता था सर दिस इज नॉट हॉरर, इट्स अ मिस्ट्री फिल्म विद द एलिमेंट्स ऑफ हॉरर इन इट। ये क्या होता है, या तो ये दो या तो वो दो ना, थ्रिलर। और फिर फिलोसफी समझाने बैठते थे सब कुछ। तो बहुत बुरी तरह थक गए थे, एग्जॉस्ट हो गए थे पूरे। और उस वक्त जब मैंने शुरू की थी, तुम्बाड़ वाज अ ट्रायोलॉजी, तुम्बाड़ वाज द स्टोरी ऑफ एन एंटायर विलेज। जैसे आपने कहा फिर इवॉल्व हुआ, लाइक आज जो तुम्बाड़ है उसमें आनंद है, आदेश है, मितेश है। मितेश डिड सच अ ब्रिलियंट जॉब, लाइक मितेश लिटरली वर्क लाइक वो हम सबका बंदा रहा। बट सोहम, मतलब आपने भी पूछा कि ये फिल्म अगर वापस आप बनाने जाओगे तो कैसे बनाओगे? सर सबसे पहले कसम खा के कहता हूँ, ये सवाल सुनने के बाद रोंगटे खड़े हो गए, बाप जन्म में नहीं बताऊंगा। And I think that even when we were shooting the film, when we had even edited some of the footage, even then we had tried to raise some finance because for Haste sequences we needed more money, because of which we had to wait also for a year. But the reactions were the same, and I'm not talking about just in Bombay or just in India, even abroad. The question was always, I mean, the only thing I think when people don't understand, they don't have a reference of what Correct. it is. They don't know what to do with it. There's a lack of vision. They don't exactly. Yeah, they don't have also, the vision to put images exactly. to the words. Yeah. And also I think it is also not incentivized in their job, to be fair. Because you know, if I'm in a studio executive, I need to have my job, and I can't go going by my gut is not something that is incentivized, right? So I understand that. Our film actually sold only once the entire film was ready with the sound and music and VFX. That's when the film was bought. The film was not bought before that. And that Soham and I and all of us were very clear about it. We understood that, you know, there is no point in showing a work in progress edit, a work in progress anything, because no one will get it. Everyone says they do, but no one does. You know, and surprisingly, things have not changed even now, even after Tumbad. I mean, we have 2 films that we are producing which are also very different in their form. Same comments. Same comments. In fact, one of the most interesting comments that I heard was someone from the studio said that it sounds more like a short film, and I was like, okay. So you know, it's just part of our. That's the dichotomy. Like, you want to break the cycle, and yet you're not. It is so hard to do it because you're not allowed to do it. You know, unless you really struggle with it. जैसे आदेश ने कहा ना राजीव की फिल्म जब तैयार हुई तो मुझे एक किस्सा याद आ गया कि हमने फिल्म आनंद जी की टीम को दिखाई थी और हमने पूरी प्रॉपर स्क्रीनिंग की थी और मैं भी फिल्म तब पहली बार आनंद जी ने नहीं देखी थी, आनंद जी की टीम ने देखी थी, क्योंकि आनंद जी को भी हॉरर से बहुत डर लगता है। तो ये भी एक किस्सा है अपने आप में, किस्से के अंदर किस्सा है कि आनंद जी को तो उनकी टीम को बहुत अच्छी लगी फिल्म। उन्होंने बाद में जाकर दिखाई कि अच्छा आपको दिन में दिखाते हैं, 12 बजे का शो दिखाते हैं, आपका हाथ पकड़े रखेंगे, 3-4 लोग आपके साथ रहेंगे। आनंद जी ने यूं करके फिल्म देखी। तो जब पहली बार फिल्म खत्म हुई तो मैं और आदेश लू की तरफ दौड़े, तो ये बहुत एक्साइटेड था, मतलब इसके बच्चों जैसा हंस रहा था और मुझे कह रहा कि यार इट्स अमेजिंग यार, बन गई। और मुझे कभी भी डाउट नहीं था कि मुझे लगता था कि हाँ यार आदेश हैंडल कर रहा है ना, आदेश फाइनली सब कुछ कर रहा है तो फिल्म अच्छी ही बनने वाली है। तो मुझे लगा कि हाँ यार ऐसी क्या खास बात है, फिल्म तो अच्छी बनने वाली थी। बहुत सारे लोगों के साथ ये कंफ्यूजन होता है कि लोग कहते हैं कि हम फिल्म बना रहे थे, हमें पता नहीं कैसी बनेगी, और हमने फिल्म देखी और हमें बुरी लगी। पर हम मतलब मेरे साथ कभी भी ये नहीं रहा। मुझे हमेशा ये रहा है कि शायद मैं ये जर्नी भी इसलिए कर पाया, तुम्बाड़ की इतनी टफ जर्नी, कि जिन लोगों पर मैंने चूज किया उन पर मेरा बहुत ट्रस्ट रहा है कि यार दे विल डिलीवर, अदरवाइज बाहर जाएगा ही नहीं। मतलब आदेश पे मुझे इतना ट्रस्ट था, राही पर इतना ट्रस्ट था कि बाहर जाएगा ही नहीं, कुछ अगर मटेरियल कामयाब नहीं होने वाला होगा तो बाहर जाएगा ही नहीं। तो मुझे वो इंसिडेंट याद आ गया आदेश की बात से। तो हम दोनों लू में थे और
आदेश के चेहरे पे बच्चों जैसे मुस्कान की, यार इट्स अमेजिंग यार, बन गई है। मैंने कहा हाँ यार बनने ही वाली थी, इसमें कौन सी बड़ी बात है। But that was also the first time I had seen the film. No, I was saying that was also मतलब the you have seen first a lot time. of time, मैंने पहली बार देखी थी हाँ. स्क्रीन पर, तुम तो एडिट But रूम में I हो want गए to थे। ask, मुझे सबको पूछना है, when a film takes 6 years to make, when that is the kind of money that is being poured in, and it's not just money, you know, हमको पता है grass was being imported from somewhere, moss is being imported from somewhere, the cost is going up, you know, you all waited क्योंकि जो दिन cloud नहीं आएगा तब तक shoot नहीं करेंगे, 4 दिन लग जाए, 5 दिन लग जाए, VFX नहीं use करेंगे, we want the right you know, we want the right atmosphere. Did you never, I want each of you to answer this, kabhi nahi laga ki maybe this is all in service of something that is not either not going to get complete or is going to end up just, you know, falling flat on its face? Soham, you didn't have any moments of doubt at all? No, not at all, not at all. जबकि मैं इसके आपको एक किस्सा सुनाना चाहूंगा कि तुम्बाड़ में लोगों ने फौजियों की तरह काम किया है। मैं आपको एक बात बताता हूँ कि टीम ने इतने पैशन से काम किया है कि यार यही जीना मरना है। मतलब तुम्बाड़ में बहुत सारी स्टोरीज हैं, और कुछ लोगों ने ऐसा भी काम किया है कि उनको ट्रस्ट ही नहीं था। एक HOD की मैं बात बताना चाहूंगा कि तुम्बाड़ हो गया, हमें कुछ शेड्यूल करना था, वो फोन नहीं उठाए, मैं उसके घर पर गया बिना किए, मुझे बड़ा शर्मिंदगी हुई कि मैं उसको बिना कॉल के उसके घर पर गया, और मैंने जाकर उसको कहा कि यार ये फिल्म शूट करनी है। तो उसने कहा कि यार तू क्यों अपने पैसे खराब कर रहा है, ये फिल्म तो कभी बनने वाली है ही नहीं। तो मतलब बहुत सारे किस्से रहे, पर मेरा उसमें ट्रस्ट कभी भी डगमगाया नहीं कि यार तुम्बाड़ बनेगी नहीं, तुम्बाड़ कंप्लीट नहीं होगी। मुझे हमेशा रहा कि नहीं यार तुम्बाड़ तो बनने वाली है, मैं बनाने वाला हूँ। और खासकर वही बात रही कि आसपास के जो लोग थे, मुझे लगता था कि यार मेरे लोग अफलातून है, जो मैंने टीम चूज की है ये अफलातून है, हम जो बनाएंगे कुछ सॉलिड बनाएंगे। और प्रीमाइस इतनी मीठी थी, तो मतलब जब लास्ट में भी फिल्म खत्म हो रही थी तो हम 3-4 लोग थे जिनको पता था कि फिल्म कंप्लीट होने वाली है। मतलब बहुत सारे क्रू ने बहुत सारे मेहनत से काम की थी, पर उनको लगता था कि यार पता नहीं फिल्म बाहर आएगी नहीं आएगी। मतलब इंडस्ट्री में ये अफवाह थी कि फिल्म तो कैन हो गई है, फिल्म तो बंद हो गई है, ये कभी बाहर नहीं आने वाली। इंडस्ट्री में तो बाप रे, इंडस्ट्री की अफवाह की क्या बोले सर, सच्ची ना, द ह्यूमिलिएशंस, द इंसल्ट्स, मतलब जो बर्दाश्त किया बहुत ज्यादा हो गया था। और कैसा होता है कि आपकी अगर कोई फिल्में निकली है, आप अगर एस्टेब्लिश हो, तो दिस बिकम्स अ इवेंट। जब आपका सब कुछ दाव पे है, लाइक सोहम का भी था, मेरा भी था, बहुत लोगों का सब कुछ दाव पे था, दैट टाइम हैविंग अ प्रोजेक्ट जो 12-15 विद ओवरऑल सालों से चल रहा है, और गंद से गंद बातें चल रही है, गंद से गंद रूमर्स आ रहे हैं, और यू नो हाउ इट वर्क्स इन इंडस्ट्री। वो आपको गूगल पे आप सर्च करोगे मिलेगा नहीं, बट एवरीबॉडी नोज अबाउट इट। दिस इज, जितना डिफिकल्ट था इस प्रोजेक्ट के साथ टिकना, इस फिल्म के साथ टिकना, लड़ना, उतना ही डिफिकल्ट था ये। एंड एक्सट्रीमली पावरफुल पीपल, द काइंड ऑफ अटैक्स हैपेंड, एवरीथिंग हैपेंड, इट्स ऑल लकीली पास्ट नाउ, बट द ह्यूमिलिएशंस, इंसल्ट्स, द फाइट्स, द टफनेस। आपने जो कहा कि आपको पता नहीं था मुंह के बल गिरोगे, हम लोग जब शुरू किया ना सर, एक बात हम लोगों को बहुत श्योर थी कि द काइंड ऑफ वर्ल्ड तुम्बाड़ हैज, द काइंड ऑफ एम्बियंस एंड एनवायरनमेंट तुम्बाड़ हैज, कोई बहुत आसानी से बोल सकता है। लाइक 99% पीपल विल से यार स्टार से तो ग्रीन्स लगा के स्टूडियो में शूट करते फिल्म सिटी। हमको पता है कि वो नहीं मिलने वाला। हमें एम्बियंस अगर चाहिए तो उसका सही तरीका, द बेस्ट वे इज अ हार्ड वे। आपको मई, जून, जुलाई, अगस्त आपको बरसात में शूट करना पड़ेगा, उन लोकेशंस पे जाके शूट करना पड़ेगा जो डिफिकल्ट है। अगर क्लाउड्स नहीं, आपको रुकना पड़ेगा। फेक क्लाउड्स आप डालने जाओगे तो यू आर नेवर गोइंग टू गेट दैट फिल्म। आप फेक रेन डालने जाओगे, एक हद के बाद आपको नहीं मिलने वाला। और सोहम की जगह कोई और होता, मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, यू विल रियलाइज हाउ तुम्बाड़ वाज मेड। वी वर इन अ हिल हाउस, सबसे बड़ा जो ग्रैंडमदर का सेट है। एवरीबॉडी लाइक प्रोडक्शन के जो हमारे लोग थे, हमारे जो एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर थे, सब बोल रहे थे कि बॉस यहाँ नहीं बनने वाला, यहाँ नहीं बनने वाला, या कोई बस नहीं जा रही, या हमें 150 लोग लेके आने हैं, यहाँ कोई बस नहीं जा रही, आप इनको समझाओ। तो कन्विंस किया, मैंने बोला कि सी द रीजन व्हाई द हिल इज इंपॉर्टेंट, लोकेशन रेकी करके। सोम बोला लेट्स डू इट, हाँ बजट का मैं देखता हूँ, लेट्स डू इट। तो सब हिल गए। फिर गिरीश भाई बहुत कि नहीं, सब लोग, मतलब मैं भी हिल रहा था, लेकिन हमको करना ही था। मुझे पंकज को किसी हाल में वो वही चाहिए था। हम लोगों ने 2006 में वो हिल देखा था बरसात में, हम लोग पागल हो गए थे। हमने कहा था बॉस और कहीं नहीं बन सकती है जगह। सोम ने बनाया वो सेट, ओके। वो सेट बनने के बाद सर स्केड्यूल आपको पता है कैसे होता है, 7 दिन तक धूप, 7 दिन तक धूप। तो पहले 3 दिन जो थे हमारे रिहर्सल्स और कंस्ट्रक्शन में गए, उसके बाद बैंड बजनी शुरू हो गई। और ये भाई साहब वहां के भगवान थे, मतलब यही हीरो है,
यही फाइनेंसर है, सारे प्रेशर इस बंदे पे है, तो लोग यूजुअली पागल हो जाते हैं। स्टूडियोज आपको बोलते हैं कि बॉस इनफ इज इनफ, यू हैव टू शूट नाउ बिकॉज सो मच मनी, मतलब दिस गाय हैज। और क्या होता था, हम लोगों को ना एक ऐसा ब्लैक कलर का एक ये रहता था, ग्लास रहता था, तो पंकज डीओपी और मैं, हम लोग दोनों से भूत की तरह वो बस देख रहे, क्लाउड आ रहे, क्लाउड आ रहे, क्लाउड आ रहे, एंड एवरीबॉडी लाइक लाइन प्रोड्यूसर मुझे पीछे से कि राही ऐसे ऐसे तो नहीं हो सकता, आप समझा ब्रो पहले। और सोहम पास में बैठ के फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे एवरीबॉडी स्टार्टेड शेकिंग कि बॉस दिस इज गॉन टू फार। और हर दिन लोगों को सुबह बस से आना पड़ता है, बसेस अटक जाती थी, वहां मड रहती थी ना, तो लोगों को, और बूढ़े लोग थे उसमें, उनको ऊपर आना पड़ता था कुछ 3.5 किलोमीटर चढ़ के पहाड़ी, और वहां ये सब कांड हो रहा है, और सोहम हमारे साथ क्लाउड देख रहा है। दिस गाय नेवर, और ठंडा रहता था ये बंदा, पानी जो रहता था जो इसके ऊपर डाला जाता था, मड रहती थी सबसे पहले, he has to constantly, तो फाइनली ही गॉट इरिटेटेड, इसलिए कि राही ऑयल लगाते ना, बस ऑयल से भी चमकेगा ना, तो नहीं, फिर उसने खुद फोटोग्राफ्स लेके देखा, उसने कहा नहीं ऐसे ही करना है। दिस गाय कॉन्स्टेंटली, और कैसे होता था क्लाउड एकदम, बिकॉज इट वाज एम्बियस, पूरा बैरन लैंड रहता था, क्लाउड जोर से आके जोर से चले जाते थे, तो स्पीड जो रहता था, कुछ रहता था उनका रेशियो 20 मिनट से लेके 25 मिनट का, तो दूर से क्लाउड दिखे, भागा भाग शुरू, रेड रेड, पंकज फक यू, ओके कैमरा, ये मोबाइल कैमरा नहीं है, इट टेक्स टाइम, चेंजिंग द लेंस टेक्स टाइम। करते करते सोहम तब तक गीला हो गया, उसने पूरा अपना ये कर लिया, ओके नाउ वी हैव टू डू, वो तोड़ना है, तब तक क्लाउड चले गए, कैमरा ऑन किया हमने, एक शॉट ले रहे, क्लाउड चले गए, कुछ तो इंच हो गया जैसे भी हो। सर इस सब के बाद 6 दिन, दैट वाज द वर्स्ट टाइम, दैट वाज द बिगिनिंग। फिल्म आधी बन गई है, फिल्म खत्म होने आई है, लोग सफर करते हैं, दैट वाज द बिगिनिंग प्रोसेस ऑफ तुम्बाड़। ये भाई साहब 6 दिन तक ही सेड शूट मत करो जब तक आपको लैम्बियंस नहीं मिलता, आई एम द प्रोड्यूसर, इट्स माय फिल्म, आई एम टेकिंग द रिस्पांसिबिलिटी। सो that was and one of the reasons. The rain, the rain also remind me something, that the rain did not leave us even while we were editing. By the way, I don't think anyone knows about it. So like when we were cutting the film, so our office is in Aram Nagar, right? And Aram Nagar is notorious for flooding. Right? Flooding, correct. And Sayukta and I, we used to be trapped in this one room where we'd just get in early in the morning at 7-8 a.m. and get out late in the night, trying to cut the film. And I remember during one of the monsoons, it started flooding inside the editing room. And the thing was that I don't know, I don't think I will ever work like that ever again. I don't know why it didn't bother us. So why it was like, it was flooding right in front of our eyes. We just dragged our machines a little towards us, and we kept cutting as if nothing has changed. It's all normal. This is how it is. We're used to taking every obstacle in our stride. Yeah. Exactly. पर exactly. राजू मैं ऐड करना चाहूंगा कि वो जो ये लाइन प्रोड्यूसर की हमारे बात कर रहे हैं गिरीश भाई, उन्होंने बहुत मेहनत की थी, बहुत, उनको बजट की इतनी चिंता रहती थी, हमेशा मेरे पास आते हैं कि सोहम आप ये क्या कर रहे हो, मराठी फिल्म बनाते हैं ना, इसमें तो 5 मराठी फिल्म बन जाएगी, आप इतने पैसे क्यों वेस्ट कर रहे हो, ये रोजाना दोबारा चीजें क्यों करते हैं। हस्तर हमने 4 बार बनाया, 3 बार बनाया। I was going to ask you, it's not just it wasn't just sets, and I mean it was even within the film, na, Hastar design, also the womb, jo poke hai, I believe that also the whole silicone womb, it evolved with time, didn't it? Yeah. प्रॉब्लम क्या हुआ था हस्तर के साथ? प्रॉब्लम ये हुआ था हस्तर के साथ कि सबसे पहले ना इंडिया में फुल बॉडी प्रोस्थेटिक्स बने नहीं थे। ग्रैंड मदर के साथ क्या हुआ, ग्रैंड मदर के साथ हम लोग बना पाए क्योंकि ग्रैंड मदर in the end she is a human being, she is walking like a human being, nobody is expecting anything unnatural from her. पर राही पहले 500 किलो की हुआ करती थी ग्रैंड मदर, याद है तुझे? या सबसे पहली जो ग्रैंड मदर थी 500 किलो की होती है, हमने शूट किया है, हमने प्रॉपर शूट किया है, हस्तर केव में होता था, काले रंग का हस्तर होता था पूरा, हमने वो शूट किया और हमें लगा कि यार ये तो वर्क नहीं कर रहा है, क्योंकि हम लोग भी सीख रहे थे। तो फिर जब नेक्स्ट शूट में हस्तर हमारा लाल रंग का हो गया, दूसरा सीजे हस्तर, तो फिर 25 किलो कम, अभी वेट 25 किलो कम, वेट 25 किलो के पूरा ही कम, फिर वेट पूरा ही कम, फिर समझ ने प्ले किया जो दादी माँ, तो उससे पहले किसी ने और ने प्ले किया था, और वो 500 किलो के साथ राही को 500 किलो की ग्रैंड मदर चाहिए थी। अब राही को जो चाहिए वही चाहिए, राही का ये बहुत था कि चाहिए वही चाहिए, मतलब तो वो ऐसा मुंह के बल गिरा हो सर, मतलब आई एम टेलिंग यू, ये बंदा अभी भी मुझसे बात कर रहा है, मैंने मतलब लव यू फॉर दिस, आई बहुत 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 सीवियर फकअप थे, मतलब जो थे उनमें से आई स्टिल रिमेंबर,
that was one of the biggest fuck ups. The entire 2012 grandmother, but I think 2014 I think वही journey थी राही. But I This think guy is you literally can't saved us help all. it because Yeah. also because at that time the industry was also in this department was at a very nascent stage. Yeah. It still is. It isn't like, and also but the point was there was no reference even internationally. Game of Thrones, for example, had not come. So people had no reference. What is the fantasy genre? Right. The fantasy genre, so people were not, people were experimenting, of course, failing at it because of that. And there is no tradition here, in the West, at least in American films, they have this legacy of people experimenting way before Star Wars came. Technologies came, right. But we were trying to figure things out, and of course we failed. I hear a lot of comments these days that when people come up to us and say you should have made a web show out of it. It's very easy to say it now, that we should have done that, but to finish a 90-minute live action film was a task, because there was just literally no crew. And even though we spent a lot of money, that money was also not enough, because we had to do whatever we could, and you asked that what one of the reasons, sorry, that's my cat. One of the reasons I think we never had this question, I'm sorry, one of the reasons none of us had any this doubt that whether this film will get made or no was because we had a strong producer. Right. That is the only reason. And honestly, by the end of it, when the actual work of assembling and taking the final calls came, only the right people remained in the crew. There was Soham, there was Sanyukta, I was there, and then there was and then there was Rahi. Everyone else thought that probably this will not get made, it will not get finished. What will happen? I want to ask Samad. Samad, as the one of the youngest members of the team, were you noticing this? Were you noticing that this was that the creators were going through all this stress? What kind of set was it? Did that kind of permeate that stress? Did it sort of permeate even with the other actors? And was it a stressful set? Could you make out they are really stressed out? I mean, they're going through a lot of difficulties. Actually, मुझे इतना नहीं होता था. मैं सिर्फ आराम से बैठा रहता था कॉस्ट्यूम पहन के, और मुझे सिर्फ एक बात बुरी लगती थी कि मेरे चेहरे पे, बॉडी पे सब जगह मिट्टी आटा लगा के मुझे रेडी करके बिठा देते थे, और फिर शाम को बोले समझ पैकअप, आप घर चले जाओ. क्या हो रहा है ये? सबने वेट बहुत किया, सबने वेट बहुत किया. I think the funniest thing that I remember of Samad is that Samad was it was that grandmother scene, so he was all dressed up in that grandmother's attire, right? And we were fighting like dogs at that time because there were difference of opinions amongst everyone. And I was like, I'm walking out, and someone else was walking out. Like, this is not that. In the middle of all this, he's sitting, and the other kid, young Vinayak, that boy is sitting there with all the atta. And while we were fighting and arguing, I just looked at these two. They were discussing. He was asking him, SLY चलेगा कल? And वहाँ पे बहुत मजा आता है. Like, what is happening here? Like, just to see this grandmother, with these two nails across her, talking. और वो सारा chocolate sauce होता था. Chocolate sauce, और ये भाई साहब खाते थे. गिरीश भाई को किस्सा बता देना. Chocolate sauce के साथ, समझ? Yes sir. वो गिरीश भाई का किस्सा वो तेरा चॉकलेट नहीं बताते छोड़ दे. पर राजेश, इसमें एक बात डेफिनेटली है कि जो इन लोगों ने बात कही है ना कि इतने हस्तर चेंज हुए और ये सब हुआ, मुझे डेफिनेटली लगता है कि अच्छे के लिए हुआ. क्योंकि अगर वो हस्तर में फकअप्स नहीं हुए होते, वो प्रॉब्लम्स नहीं हुई होती, तो तुम्बाड़ कभी बनी नहीं. जैसी आज आप देख रहे हो वैसी बनी नहीं पाती, क्योंकि बहुत सारी उसमें प्रॉब्लम हुई, तो फिर बहुत सारी रीराइटिंग शुरू हुई, फिर फिल्म और रिच हो गई, वूम बन गया केव की जगह, क्लाइमैक्स चेंज हो गया, बहुत सारी चीजें चेंज हो गई, कि लोगों को लगता है कि फिल्म ऐसी लिखी गई थी, ऐसी नहीं लिखी गई थी. But on the one hand, you all are focusing on the logistics of getting it right. Hastar sahi lage, coke sahi lage, the atmospherics are right.
was there ever a concern that you know that will the script connect? Because it's a wonderful story of greed, of generations of greed, and what that does to a family. When तुम्बाड़ हमारे No, साथ there बनी है। was. तुम्बाड़ का जो The पूरा स्क्रिप्ट film. है, स्पेशली द सेकंड हाफ ऑफ तुम्बाड़, वो जैसे अभी हमने कहा ना कि हम लोग सब कोई भी 35 साल का नहीं था, हम लोग सब यंग थे। correct. मेरी तो इनसे भी 6 साल पहले तक जर्नी थी मेरी तो और लंबी रही, मेरी तो 15 साल की रही। तो कॉन्स्टेंटली ये फिल्म डेवलप होती गई। मैं हमेशा बोलता हूँ कि तुम्बाड़ किसी ने नहीं बनाया, तुम्बाड़ ने खुद को बनाया, और हम सब जो थे वो टिके रहे। हम सब Correct. मतलब मिराकल ये नहीं है कि हमने फाइनली तुम्बाड़ बना, मिराकल ये है कि तुम्बाड़ अच्छा बना। Right. Everybody was expecting a debacle, everybody had given up. Correct. वो Yeah. बहुत And ब्रिलियंट I बना, वो think, इसलिए बना and I क्योंकि think- जो थे, सोहम था, मितेश, आनंद, आदेश, मैं, हम लोग कितने भी झगड़े, कितना भी कुछ भी हो जाए, हम लोग टिके रहे। हम लोग बहुत प्यार से कुछ तो था ना, एक सोल थी जो बहुत प्योर थी। अभी गड़बड़ ये हो रही थी कि कहानी की जो हम लोग चेंजेस की बातें कर रहे हैं, मेजर जो चेंजेस हो रहे थे, इट वाज अबाउट एंडिंग। माय एंटायर थॉट प्रोसेस, जब मैंने 97 में ओरिजिनल लिखा था, टिल 2008 द फिल्म एंड्स व्हेन दे आर सराउंडेड बाय हस्टर्स, देयर इज नो वे आउट। Right. I always initially I wanted, जब अनुराग था, नवाज के साथ जो मैं कर रहा था, 18 में जो मैं बना रहा था, उसमें there was no way out. Then उसके बाद हमने ये चेंज किया था, जिसके साथ मैं खुश था, जिसके साथ ये बिल्कुल खुश नहीं थे। I agree with these guys now. What I was thinking was wrong. वो ये था कि Vinayak doesn't sacrifice for Pandurang. Pandurang sacrifices Vinayak in the end. Right. जब Correct. ये सोचा गया कि नहीं, बाहर तो निकलना है, this can't be the end. Right. When they are surrounded by hustlers, there is no way out. Nobody other than me, nobody was convinced. So I respect them. गलती ये हो सकती है। तो then fair enough that it was Pandurang. It's Pandurang who sacrifices the father, and he's the one. But वापस हमारे debates हुए, discussions हुए, चक्र break करना पड़ेगा। We have to break that wheel. Correct. That somehow that grid has to stop. Correct. Somehow. Yeah, you have to end that cycle. Correct. Yes. Yeah. जो एंड की राही ने बात की, हमने 2 एंड शूट किए थे। मैं आपको एक किस्सा सुनाना चाहूँ। हमने 2 एंड शूट किए थे कि एक एंड में विनायक दादी बन जाता है और पांडुरंग उसको खींच के लेके जा रहा है और भारत सरकार की गाड़ियां आ रही है, जो फ्लैटलैंड है, हमने वहां हवा के साथ पूरा प्रॉपर शूट किया था। ट्रेलर में भी मैंने फिल्म में कभी किसी को रोका नहीं है। आदेश ने आकर कहा कि ये कर लो, हाँ कर लेते हैं। राही ने आके कहा ये कर लो, कर लेते हैं। आनंद ने आके कहा ये कर लो, कर लेते हैं। पर एंड को लेकर मैं हमेशा अड़ा रहा कि भैया एंड तो मुझे ये चाहिए, तुम्हें शूट करना है कर लो, पर एंड ये होना चाहिए कि एंड थोड़ा सा इमोशनल होना बहुत जरूरी है, और वो लालच का चक्र टूटना बहुत जरूरी है। एक ही चीज थी जिसपे मैं हमेशा इनके साथ, मेरा बाकी तो आपस में लड़ते थे, मैं कभी भी इनके साथ मैंने लड़ाई नहीं की, आपस में लड़कर सुलझा ले लेते थे कि क्या करना है। इस बात पर मैं हमेशा रेडी रहा कि नहीं यार ये एंड तो मुझे ये चाहिए। मतलब सर एक्चुअली सोहम और मेरा जो मेजर जो था वो ये एक ही इस पे था सबसे बड़ा, that he wanted a end with a hope, the positiveness. I wanted there is no way it's all going into, वो बोलते ना आप जब नीचे गिर रहे हो, you have to reach the top bottom, the end should be top bottom, but then the idea came which is so beautiful that we reached the top bottom. Yeah, I guess राजू कहीं ये भी होता है कि as a producer ना, आप कुछ नया करना चाहते हो, आप लोगों को बहुत सारी चीजें करने दे रहे हो, पर कहीं ना कहीं एक कोर होता है कि आपको लगता है कि यार ये तो मेरे लिए बहुत जरूरी है कि इसके बिना मेरी इकोनॉमी वर्क नहीं करेगी। क्योंकि मैं आता हूँ, मतलब मैं सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान की फिल्में देखकर पला बड़ा हूँ, तो मेरी एक आइडियोलॉजी है कि यार चीजें इमोशनल होनी तो बहुत जरूरी है। तो आप सब कुछ करने देते हो कि आप जो डिजाइन करना है करो, बारिश में शूट करो, हस्तर को चेंज कर दो, मूव बना दो, जो आपका दिल करे करो, पुनः मार्केट बना दो, फिर मत दिखाओ, वो भी चलेगा। पर मतलब फिल्में मैंने देखी इन दिनों में, क्योंकि ये लॉकडाउन चल रहा है, तो मैंने कुछ फिल्में देखी हैं जो फिल्में ठीक ठाक होती हैं, पर एंड पर फिल्म पूरी की पूरी वर्क कर जाती है कि आप एंड के कारण फिल्म आपके लिए मेमोरेबल हो जाती है। तो वो मेरे लिए एंड हमेशा बहुत जरूरी होता है कि, और प्रोड्यूसर के हिसाब से आपको कहीं ना कहीं बैलेंस करना चाहिए कि आप सबकी सुन रहे हो, पर कुछ ना कुछ तो आपका भी एक होना चाहिए कि यार ये मुझे करना है और ये नहीं करना। You know, बहुत बातचीत हुई है, आपको ये सवाल आई थिंक कई लोगों ने पूछा है, will there be, I mean, are there any genuine plans to do a Tumbad 2? सर मैं इतना बताता हूँ आपको, मतलब ओरिजिनली बेसिकली तुम्बाड़ जो है ना, नारायण धारप नाम के मराठी में बहुत बढ़िया राइटर है। करेक्ट। ओके, उनकी बचपन में हम लोग कहानियां सुनते थे। द ब्यूटी ऑफ हिज राइटिंग, इट वाज मोस्ट ऑफ अ पल्प फिक्शन, बट द ब्यूटी इज द एम्बियंस, द एनवायरनमेंट ही यूज्ड टू क्रिएट। द रीजन ये जो तुम्बाड़ का वर्ल्ड हम लोग क्रिएट कर पाए, बिकॉज इट वाज देयर, द वाड़ा,
वो अंधेरे, वो कॉरिडोर, वो आलवन, वो दुनिया जो थी, वो दुनिया से बहुत मैं बिलोंग करता था. तो डेफिनेटली लाइक already I'm working on Pahad Pangira, already I'm working on Kabant, which belongs to that world. लेकिन पहले तो अभी ये प्रोजेक्ट जो जिसके भी that I have to finish this in this 1 year. उसके बाद I would love to make Pahad Pangira. And I think, but Tumbad will also, the thing is that we are obviously very excited about that world. I'm personally very excited about expanding it, exploring more ideas. And to be honest, we are exploring, we are working on it very judiciously every day. But this is something that I keep telling Soham, that you are always very excited and you are certain in your head that it's getting made. But I never commit to it, because I don't know if it's there yet, and I don't know if it's because unless if it is there, if it is really something that we feel okay on paper, it works. I would probably not encourage anyone to do it. Because it has to be worthwhile. Because if it's not worthwhile, then it's going to be. You don't want to just do one for the sake of it. Yeah. Exactly. There's no point in it. There's no. But given that the only character that actually survives, or at least the central character is Pandurang, we must ask, Samad, would you come back? आप करेंगे तुम्बाड़ 2? 6 साल लगे, 7 साल लगे, जितना टाइम लगे आप करेंगे? Yes, sir. It take 10 years. I'll do it. मेरा बच्चा. पर राजीव, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ. मुझे तुम्बाड़ 2 बनानी है, मुझे तुम्बाड़ 3 भी बनानी है. तो मेरा ये आपके बहाने में आदेश पर प्रेशर बना रहा हूँ कि भैया जल्दी लिखो, जल्दी लिखवाओ. तुम्बाड़ 2 भी बनानी है, तुम्बाड़ 3 भी बनानी है. क्योंकि जब मैंने तुम्बाड़ की थी तो कहीं ना कहीं आइडिया यही था कि इतना इन्वेस्ट भी इसलिए किया गया कि इसमें लंबा विजन है, कि ये प्रीमाइस ऐसी है कि इस पर 2, 3, 4, 5, 6 फिल्में भी बन सकती हैं, शोज भी बन सकते हैं, कुछ ना कुछ हो सकता है. तो डेफिनेटली मुझे तुम्बाड़ 2 तो पक्की बनानी है. Best of luck, best of luck. No, I think that the fans would love it. I mean, the fans have been looking forward to it because it's our own sort of homegrown horror film. Na? Matlab, it's a truly Indian, unique horror film. एक मैं किस्सा आपको और सुनाना चाहता हूँ. ये लोग जो तुम्बाड़ की बात कर रहे थे कि लोग बिलीव नहीं करते थे कि फिल्म जब बन रही थी ये हो रहा था. मतलब मैं मेरी माँ को ले गया वेनिस, पहली बार यूरोप ले गया, बड़े चाव से कि यार फिल्म वेनिस में प्रीमियर हो रही है. Correct. मेरी माँ को कितना अच्छा लगेगा, मेरी माँ देखेगी. मेरी माँ सो गई फिल्म के दरमियान, और मतलब स्टैंडिंग ओवेशन मिल रहा है. मेरी माँ को मैंने उठाया कि माँ चलें, तो माँ कहती कैसी फिल्म बनाई है, सारी फिल्म में बारिश होती रहे, वह भूतनी कितनी डरावनी, मतलब कि वो भूत कितने डरावने थे, पूरी फिल्म में बारिश होती रहती है. तो किसी फिल्म में बना हुआ है कि कोई इंग्लिश में बात करने लग रहा है. ना तो उनको शिप ऑफ थीसिस समझ में आती है, ना उनको तुम्बाड़ समझ में आती है. तो ये मेरा घर पे माहौल है कि मतलब तुम्बाड़ बनने के बाद भी मुझे लोग मेरे घर पर ऐसा नहीं कहते कि तूने क्या फिल्म बनाई है. उनके लिए होता है कि यार कुछ ऐसा बनाओ जो सीधा साधा सा हो, जो सिंपल सा हो. मुझे याद है कि मतलब प्रीमियर हुआ फिल्म, अगले दिन स्क्रीनिंग थी, मैं और मेरा भाई वॉक कर रहे हैं, और मेरा भाई कहता फिल्म तो ठीक है यार, पर लोग आएंगे क्या देखने के लिए. तो तो मतलब ऐसे इश्यूज होते हैं घर में कि फिल्म बन गई है, फिल्म देखने के बाद पूरा जहान तारीफ कर दे, पर घर से तारीफ पाना एक अलग ही खेल है. But जितनी तारीफ मतलब fans से मिली है, it's a film that has really united fans, and it's a film that people love. The enthusiasm about this film online, the excitement about the film online, even last year when it completed 1 year, the buzz that it generated online, it's beautiful. So I hope कि आप सब seriously सोचेंगे तुम्बाड़ 2 के बारे में, because that world is very wonderful. और जैसे कि राही ने सही कहा, and you're right, each of our parts of our country offer so many folk stories, so much mythology, that I hope you are able to extend this world. But this was lovely, thank you. And I also want to say here, जिसने भी अब तक तुम्बाड़ नहीं देखी है, it is streaming on Amazon Prime Video. You must watch it. It is really a staggeringly original film. It's a beautiful horror film, a beautiful marriage of mythology and fiction. And it's done so well by these incredible people. To all of you, thank you so much. And आपकी दोस्ती, आपकी camaraderie देखकर ये लगता है कि जितने भी झगड़े, जितना भी stress हो फिल्म बनाते समय, when you made a great piece of work, at the end, it's the glue that binds people together. So thank you. Yeah, it feels like that. All is well that ends well. All's well that ends well. Thank you, Rahi. Thank you, Soham. Thank you, Samad.
Thank you, Adesh. Thank you so much for this wonderful conversation. One really got a sense of how you all made this incredible film. I have a feeling that this film is going to live on much longer than all of us. I think that it'll continue to, find its own audience and find its fans, and can't wait to see what you all do next within the Tumbad universe. Thank you so much. Thank you, sir.